તારીખ 12 ઓક્ટોબર 2017 કૈલાશ પાર્ટી પ્લોટ ખલીલપુર રોડ જોશીપરા જૂનાગઢ ખાતે સમર્પણ પરિવાર જૂનાગઢ દ્વારા યોજાયેલ સ્નેહ સંમેલનમાં ખાસ મહેમાન તરીકે પધારેલ શ્રી અંબરીશજીનું તેમના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ અંગેનું વક્તવ્ય અત્રે રજૂ છે. ઉપસ્થિત પૂજ્ય ગુરુદેવ અને ગુરુમાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. શ્રી અમરીશભાઈને જય બાબા સ્વામી તથા સર્વે ભાઈ બહેનોને જય બાબા સ્વામી. આજનો આ રૂડો અવસર આપણા ગામમાં અને આ ખરેખર સ્વામીજીની કૃપાથી ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ નામ તો આપણે ઘણાએ સાંભળ્યું જ છે, કોઈ લગભગ એનાથી વંચિત નથી, પણ એક ખાલી આછેરી ઝલક કે આનું નામ ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ શા માટે છે. જેમ જેમ સમયની માંગ થતી જાય એવી રીતે બધી જ પરિસ્થિતિઓ, બધી જ સ્થિતિમાં, બધા જ કાર્યોમાં પરિવર્તન કુદરત જ કરતી રહેતી હોય છે. આપણું પણ સમર્પણ ધ્યાન મિશન એમાં પણ ઘણા પરિવર્તનો ગુરુદેવ આવ્યા ત્યારથી જેમ જેમ જરૂરિયાત ઊભી થતી રહી એવી રીતે પરિવર્તનો આવતા ગયા. બધા જ વ્યવસ્થામાં પણ આવ્યા, બધા જ કાર્યક્રમોમાં પણ આવ્યા, સાધકોમાં પણ આવ્યા. અને હવેના સમયની અંદર, આવતા સમયની અંદર જે જરૂરિયાત ઊભી થવાની છે અથવા તો જે આવશ્યકતા છે આપણા અને આપણા સમગ્ર પરિવારમાં, આખા વિશ્વને જેની જરૂરિયાત છે એમના માટે શું જરૂરી છે આવતા સમયની અંદર, એ જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટેનો જેને કહીએ ને કે આ એક આખી નવી વ્યવસ્થા, અને એ જેનું કહે કે સ્વપ્ન કે સંકલ્પ, એ જે થયું છે એ અમરીશજી દ્વારા ગુરુ શક્તિઓએ કરાવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટની અંદર કદાચ આપણને કંઈક ક્યારેક નવા નામ સાંભળવા મળે, ઇંગ્લિશ શબ્દો જાણવા મળે, અમુક કંઈક કોર્પોરેટના શબ્દો પણ આપણને જાણવા મળે, પણ એ આવતા સમયની જરૂરિયાત છે. પણ મુખ્ય હેતુ આ પદ્ધતિનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક એક સાધકનો આંતરિક વિકાસ થાય, એક એક સાધકનો સર્વાંગીણ વિકાસ થાય, એ હેતુથી અને એ સ્વપ્નથી શ્રી અમરીશજીએ આ વ્યવસ્થાને લાગુ કરી છે. નામ કદાચ આપણે જૂના ઘણા સમયથી ઘણા જોડાયેલા હોય, કદાચ આપણે જૂના માણસો હોય તો આપણને એ શબ્દો કદાચ અજાણ્યા પણ લાગે, પણ નવી પેઢી એ જ સ્પીડથી આગળ વધી શકશે, એ જ સાધનથી આગળ વધી શકશે, એ જ માધ્યમથી એ ઝડપથી આગળ વધી શકશે. એટલા માટે જ કદાચ આજની અને આવતી સમયની પરિસ્થિતિને રૂપ આમની વ્યવસ્થા હોય, પણ મુખ્ય હેતુ ભાવ ઉપર જ છે આખો. અને એ આપણે શ્રી અમરીશજીના માર્ગદર્શનમાં આજે સૌએ આપણે જે લોકો સીએટીમાં, ડીએટીમાં એટલે કે સેન્ટર લેવલની ટીમમાં, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલની ટીમમાં પૂર્વ આચાર્ય, એ બધાને આજ સવારથી શ્રી અમરીશજીએ સમય આપ્યો અને સમજાવ્યું જ છે. પણ અત્યારે પણ આપણે અમરીશજીને જ સાંભળવાના છે, એમની જ વાણીનો આપણે લાભ લેવાનો છે. એમના મુખેથી જ આ ભાવ આપણે જાણીએ, કારણ કે આપણે તો જ્યારે પણ મળશું ત્યારે આપણને તો સમય છે, આપણે વાતો કરતા રહીશું, પણ આજે આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે તો આપણે એમનો જ ભાવ ગ્રહણ કરીએ. જય બાબા સાહેબ. सभी गिरनार वासियों को मेरा जय बाबा स्वामी।
वहां पर हर कोई कहता है, यहां पर भी हर कोई कहता है, यहां पर हर कोई कहता होगा कि गुरु तो कितने दूर मोगार में बसे हुए हैं, और जो गिरनार को प्यार करने वाले हैं वहां पे वो कहते हैं गिरनार कितना दूर हमसे बसा हुआ है। गिरनार में भी गुरु बसा हुआ है और मोगार में भी गिरनार बसा हुआ है। लेकिन जब हम गुरु के साथ में रहते हैं, गिरनार के साथ में रहते हैं, तो हम पूरे गिरनार को आज तक कौन जान पाया है? गिरनार के कोने कोने को कौन जान पाया है? बहुत कम लोग जानते हो। तो उनके स्वप्न को भी हम अगर जान लें तो हमारा जीवन धन्य हो गया, उसे समझेंगे। तो उनके ही शब्दों में अगर हम कहें कि उनकी इच्छा बहुत सारे बीज बोने की नहीं है, बहुत सारे साधकों की नहीं है, उनकी इच्छा उन साधकों की है जो पेड़ बन गए हों, खुद पेड़ बन गए हों। तो स्वामी जी पेड़ बनने का आशय क्या कहते हैं? मतलब स्वनिर्भर हो गए। अब वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। अभी तक हम हमेशा कोई ना कोई सहारा लेते हुए ही आए हैं या नहीं आए? सभी लोग जानते हैं कोई ना कोई तो सहारा चाहिए होता है। हो सकता है वो भक्ति गीत का सहारा हो, भजन का सहारा हो, आरती हो, या फिर नाम स्मरण हो। कोई ना कोई सहारा हमें हमेशा चाहिए होता है। लेकिन स्वामी जी का स्वप्न का एंड प्रोडक्ट क्या है? स्वामी जी का जो स्वप्न है वो यह है कि हम खुद उस स्थिति को प्राप्त हो जाएं, जिस स्थिति के अंदर में आप सिर्फ बैठे हैं, शांत बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर भी आपको एक शांति का पल मिल गया, आपने सांस गहरी ली, छोड़ी, उसमें ही आपका ध्यान घट गया, उसमें आप निर्विचार अपने आप ही हो गए, उसके अंदर में ही आपका ध्यान लगने लग गया। यह होना स्वामी जी का स्वप्न है कि हर कोई उन पर निर्भर नहीं रहे, अब वो ध्यान करने लायक हो जाए, स्वयं हो जाए। किसी ने मुझे सजेशन किया कि जैसे पहले हम लोगों ने नाम क्या रखे थे, आचार्य रखा था, संचालक रखा था। तो संचालक जो होता है वो संचालन करता है, आचार्य जो होता है वो आचरण का ध्यान रखता है। ये उसके कुछ कॉमन मीनिंग्स हैं। लेकिन अगर हम आचार्य का सिर्फ शब्द का उपयोग करें तो कितने सालों की साधना के बाद में हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े महापुरुष आकर के गए जिनको हम आचार्य बोलते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा, आचार्य रजनीश, और हम लोगों को स्वामी जी ने इतने आसानी से यह नाम दे दिया, आचार्य। वैसे ही गिरनार में, हिमालय में इतने सालों से हर रोज नियमित साधना करने वाला साधक बन जाता है। लेकिन स्वामी जी ने हमको सिर्फ एक बार शिविर में क्या आ गए, हम साधक हो गए। तो इतने आसानी से हमको साधक बना दिया स्वामी जी। लेकिन उस शब्द का हमने पूरी प्रकार से गुण को उतार पाना, यह उनका स्वप्न होगा, इसीलिए तो हमें ऐसा नाम दिया कि हम साधक। अगर एक दूसरी दृष्टि से हम खुद को देखते हैं तो हम समझेंगे कि आज हम साधक नहीं हैं, क्योंकि हमारी नियमित ध्यान नहीं है, नियमित साधना नहीं है, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी वजह की वजह से हम उसको स्किप कर जाते हैं। जैसे आसान काम होता है ना, उसको हम बाद में करते हैं। जैसे कि आपको कोई एग्जाम हो और आपको सब्जेक्ट पढ़ाई करने हो तो क्या करोगे? आसान सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, मुश्किल सब्जेक्ट सबसे पहले। आध्यात्म में सब कुछ उल्टा होता है। आध्यात्म में आसान चीजें सबसे पहले, मुश्किल चीजें अपने आप हो ही जाएंगी।
इस जीवन में संसार के अंदर का नियम क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा बुद्धिशाली हो तो आप अच्छे, और अगर आपने समर्पण ध्यान के अंदर में पद्धति में साधना में क्या होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाई तो आपकी साधना नहीं होगी, आप साधक ही नहीं हो पाओगे। तो बुद्धि से भी ऊपर उठ जाना ध्यान है, कि जहां पर बुद्धि और मन दोनों ही नहीं आए वहां पर ध्यान है। जहां पे सब प्रश्नों का अंत हो जाए वहां पे ध्यान है। यह सब हो पाना स्वामी जी के स्वप्न में आता है। और जीवन में हम जिस संसार के अंदर में रह रहे हैं उसकी लत हमको लग चुकी है। क्यों? बचपन से हमको बड़ा कैसे किया गया है उसे जरा ध्यान से सोचिए। जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे अपने अंदर में भी सोचिए कि वह हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे आप छोटे थे तो आप पक्षियों को, पंछियों को, तितलियों को कितना प्यार करते थे। आप गुड्डियों गुड्डों से खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, मजा करते थे। आपको खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई में घुसेड़ दिया गया। पढ़ाई में घुसेड़ना तो कोई गलत बात नहीं थी, पढ़ाई तो अच्छी ही होती है, लेकिन पढ़ाई से जो उससे छीना गया उसका बचपन, वो गलत बात है। पढ़ाई से उसको शिक्षित करना अच्छी बात थी, लेकिन पढ़ाई से उसको बचपन छीनना वो गलत बात है। जिस प्रकार से एक बच्चा पैदा होता है ना, तो आपने देखा होगा किसी किसी को देख करके बड़ा मुस्कुराता है। कभी कभी आपने देखा होगा आपका बच्चा स्वामी जी के फोटो को देख करके भी बड़ा मुस्कुराता है। स्वामी जी के भजन को सुनते से ही शांत हो जाता है, स्वामी जी के प्रवचन सुन करके शांत हो जाता है। किसी किसी के आ जाने से वो खुश होता है और किसी किसी के आ जाने से दुखी, जबकि वो तो उसको जानता भी नहीं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि वह बच्चा बहुत ही ज्यादा एनर्जी को लेकर के सेंसिटिव है। उसको एनर्जी का ज्ञान है कि कौन अच्छा कौन बुरा। हमको प्रकृति ने वैसा ही बनाया है। आज भी वो होता है हमारे साथ में। आज भी स्पेशली हम कह सकते हैं स्त्री के अंदर में ऐसा होता है कि उसके पास में कोई रीजनिंग नहीं होती, उसके पास कोई कारण नहीं होता है, लेकिन वो बोलती है ऐसा मत कर तू, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अपन ऐसा नहीं करना है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपने को अंदर से लगता है, गट फीलिंग आती है कि ये सही नहीं है या फिर ये व्यक्ति सही नहीं है, ऐसा कुछ अंदर से होता है। वो जो सारा जो भाव होता है बचपन से प्रकृति ने हमारे अंदर दिया होता है। तो वो व्यक्ति ऑरा देख सकता है, छोटा बच्चा जो है वो सभी का ऑरा देख सकता है। और स्पेशली जो ऐसे दिव्य आत्माएं होती हैं उनको आप कभी देखोगे ना तो अकेले में अगर उनको ऐसा आपने रखा हुआ है रूम के अंदर में, तो वो आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए कहीं पे देखते हुए नजर आएंगे। उनको वो दिख रहा होता है, कोई ना कोई शक्ति उनको दिख रही होती है जिसके हाथ में वो खेल रहे थे, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन जैसे हम उनको पढ़ाई करने में मजबूर करते हैं तो उनका क्या होता है, ए ऐसे लिखा हुआ रहता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ए कैसे लिखता है, ब्लैक कलर के अंदर में उसको दिखाया जाता है। उसको ये बोला जाता है कि तू उस अक्षर के आसपास क्या रंग है उसे मत देख, वो अक्षर क्या है उसे देख। तो हमारी पेरिफेरल विजन जो है, हमारा जो ऑरा को देखने वाला विजन है, वो हम भूल जाते हैं, भूलते हैं, खो नहीं जाता। आगे आकर के ध्यान करते करते वो किसी किसी को आ जाता है। लेकिन जब बचपन में हम एक एक चीज पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे कि ये तेरे पापा, ये तेरी माँ, तो माँ के आसपास मत देख, पापा के आसपास मत देख, चाचा के आसपास मत देख, चाचा को देख, चाचा का चेहरा पहचान। तो ऐसे बड़े करते करते हम उसको पहले तो उसका ऑरा देखने की एबिलिटी उससे छीन लेते हैं। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा सा इनोसेंट होता है, तो उसको बोलते हैं इतना भूला नहीं रहना चाहिए, अपन ने दिमाग लगाना चाहिए, तो उसकी इनोसेंस भी छिन जाती है। तीसरा, वो अपनी क्रिएटिविटी कहीं पे करना चाहता है, लेकिन उसके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो जॉब करते करते अपनी क्रिएटिविटी को भी भूल जाता है। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ उससे छिन जाता है। लेकिन ये लौटता कब है, जब उसके जीवन में कोई स्वामी आता है। फिर वो वापस से कविताएं लिखने लग जाता है, वापस से गीत गुनगुनाने लगता है,
वापस से ऐसा एक कठोर व्यक्ति भी रोते हुए देखते हैं ना। बहुत सारी साधिकाओं ने बताया कि मेरा पति रोने लग जाए, ये तो मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसा कठोर व्यक्ति के अंदर में पत्थर से भी पानी बहने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वापस से बचपन में लौट जाता है। तो हमारे जीवन में जो संस्कार हमारे ऊपर दिए होते हैं उसको डी संस्कार करना पड़ता है। जो हमने सीखा है उसे अनलर्न करना पड़ता है। यह समर्पण परिवार के अंदर में सभी ने ये देखा होगा। साथ साथ में जैसे जैसे हमको अच्छी सामूहिकता मिलती है ना, तो हमारे जीवन में कुछ नई चीजें घटती, लेकिन वो आए उससे पहले तो छूट जाता है व्यक्ति। कुछ नया हो उससे पहले होता कैसे है वो समझने से पहले अपन कुछ ये जानते हैं कि भगवान अपने को एकदम से क्यों नहीं ज्ञानी बना देता एकदम से। हम चाहें तो हम जानते ही हैं आत्मा है, लेकिन हम मानते नहीं है आत्मा है। किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे भूला था कि स्वामी जी कहते हैं आत्मा बनो, आत्मा मानो अपने आप को, आत्मा मानो अपने आप को। तो मान तो लेंगे, लेकिन जानेंगे कब? कब से मैं बोल रहा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, जानूंगा कब कि मैं आत्मा हूं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हम बोल रहे हैं खुद को आत्मा, लेकिन हम जानेंगे कब? हम बोल रहे हैं हम खुद आचार्य है, लेकिन आचरण में आएगा कब? हम बोल रहे हैं हम साधक है, लेकिन साधना करेंगे कब? होगी कब ये सब चीजें शुरुआत? तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि विज्ञान जो है, विज्ञान और ध्यान दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। विज्ञान और आध्यात्म में एक चीज बहुत कॉमन है, वो यह है कि विज्ञान भी किसी चीज को एज्यूम किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक विज्ञान ये एज्यूम नहीं करता कि ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, तब तक वो ग्रेविटी के लॉज को पता नहीं कर सकता। उसने एज्यूम किया कि ऐसी कोई शक्ति है जो नीचे गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई शक्ति है, तभी वो कैलकुलेट कर पाया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कितनी है। वैसे ही आध्यात्म एज्यूम करता है कि हम सभी आत्मा है और हम परमात्मा के कण हैं। ये पहले एज्यूम करते हैं, और जब हम एज्यूम करते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना किसी दिशा के कोई व्यक्ति कैसे आगे बढ़े? इसके लिए स्वामी जी हमें कहते हैं कि पहले तो अपने आप को मानो तो सही कि तुम आत्मा हो। कभी कभी मानते मानते हम जान भी जाते हैं कि हम आत्मा हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सामूहिकता की। स्वामी जी चाहते हैं कि हम पेड़ बने। तो कैसे बनेंगे वो पेड़? पहले तो हम हमारा पुराना सिस्टम को समझते हैं। पहले हमारे साथ में क्या होता था, हम एक सेंटर खोलते थे, सेंटर में सभी साधक आते थे, ध्यान करते थे। 2000 साधकों का हम लोगों ने प्रचार किया। वो लोग 8 दिन का शिविर भी अटेंड करते हैं। 500 लोग जुड़ते हैं, 1000 लोग जुड़ते हैं, फिर कितने जाते हैं? 200 लोग साल भर के बाद में। तो ये जो 200 लोग बचते हैं, तो क्यों बचते हैं सिर्फ 200? बाकी के सबका क्या होता है? क्या वो लोग इसके काबिल नहीं होते? क्या इनके कर्मों में लिखा नहीं होता? क्या होता है कारण? कारण इतना ही है कि शरीर भाव हमारा इतना ज्यादा है कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते अपने जीवन के अंदर में। इसको समझना हो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अपने वच्चे बहु बधा लोको हसे जे लोको जिम कर्યું हसे। કેટલા બધા લોકોને ખબર છે જીમની? સાંભળ્યું તો હશે ને? હાથ ઉપર કરો। ઓકે, તો અમે લોકો જ્યારે एकदम खाई खाईने खूटिया थई जाए, सांड जेवा थई जाए, तो આપણે શું કરીએ? આપણે जिम જોઈન કરીએ कि લગન પહેલા આપણને સુંદર દેખાવું છે, હે ને? અને જ્યારે આપણે जिम જોઈન કરીએ એના પછી શું થાય? બહુ પરસેરો આવે, બહુ આંગ દુખે આપણું। અમે લોકો શું કહે, આ जिम માસ્ટર અમારું गर्दन सुधीनो आखी जेटली जान छे बधी खाई जाए छे। तो मारी गुजराती एटली सारी नहीं, पण तमे लोको भावने ट्राय करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
कि आप लोगों का सारा निचोड़ आ जाता है। आपने जितना खाया है उतना आपको पचाना पड़ता है, अपनी बॉडी को उतना पतला करना है। तो जब हम खाते हैं उस टाइम पे सोचते नहीं है कि अरे जिम में जाकर के वापस से निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं सोचता कोई। खाते हैं तब तो हमको विचार ही नहीं आता जिम का। उस टाइम पे तो बस वो चमकीले, कलरफुल, खुशबूदार, टेस्टी वाली चीज अपने को सामने दिखती है, फिर निर्विचार हो जाते हैं। उससे अच्छी कोई आध्यात्मिक अपनी कोई अनुभूति नहीं हो सकती खाने को देख करके। सुबह सुबह अपने को अच्छा फाफड़ा जलेबी मिल जाए, फिर कोई और थोड़ी चीज चाहिए अपने को। बाहर में जाए सरकार क्या कर रही है। तो हम खाते हैं तब सोचते नहीं है कि अपने हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है करके, और खा लेते हैं। और खाने के बाद में जब हमको डॉक्टर बोलता है कि तुम जिमिंग नहीं करोगे, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करोगे तो मरोगे, तो जिम करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारा दर्द जो होता है उसमें हम छूट जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार होती कि ये सब अपने से हो पाएगा। तो 2 महीने में या 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हमारी जान निकल जाती है। हम लोग बोलते हैं रहने दो भाई, सलमान खान नहीं बनना, कैटरीना कैफ नहीं बनना है अपने को, बॉडी भद्दी दिख रही है, दिखने दे, शादी करने के बाद में मैं वैसा ही होने वाला हूँ, ऐसे ही होने वाली हूँ। वो भद्देपन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। जिस दिन आपने उस भद्देपन को एक्सेप्ट कर लिया ना आपने, उस दिन एक घटना जरूर घटती है आपके साथ में। आपने ये मेक श्योर कर दिया, आपने ये पूरा तय कर दिया कि अब जीवन में आप अच्छे नहीं दिखने वाले, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया। वो चीज आपकी उस चीज को और दूर फेंक देती है जो चीज घटना घटने वाली होती है। तो अपना जो ये भद्दापन को हम एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने हमारे यहाँ पर भारत देश के अंदर में करप्शन को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी करप्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैसे चलेगा, थोड़ी सी तो करप्टेड होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ यह है कि हमने करप्शन को, हमने हमारे भद्देपन को, हमने हमारे शरीर भाव को मान लिया है कि ये तो रहने ही वाला है, ये अस्थाई है, इसके लिए वो रहता है। और इस भाव को निकालने के लिए जिम वाला क्या कर सकता है? अगर मैं खुद जिम खोलता ना, तो मैं पक्का ऐसा जिम खोलता जो आपके घर पे अगर के बस की तरह आए, बस में से भौंपू बजाए, घर से निकले नहीं तो घर के अंदर से उसको खींच करके लेके जाए, बस में बिठाए, जाकर के जिमिंग करवा करके, चाहे अधमरा तो अधमरा वापस घर पे छोड़ के आए। बिल्कुल वैसा ही मेरी कल्पना है हमारा सेंटर होना चाहिए। सेंटर नहीं, अब हम स्कूल चलाएंगे। सेंटर तो पुराना सिस्टम हो गया कि आकर के लोग करना है तो करो वरना भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं। अभी जो सिस्टम होगा उसमें कैसा होगा? अभी कोई व्यक्ति ध्यान के लिए आया है, जुड़ा है, उससे अच्छी लोगों की दोस्ती हो जाएगी, अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। अब वो व्यक्ति 2 दिन नहीं आया, आपने फोन किया उसको कि भाई क्या हो रहा है, आज नहीं आया, तू क्रिकेट मैच देख रहा है क्या, रिकॉर्ड कर ले। लेकिन तेरा ये आज का जो समय है वो तेरे को वापस नहीं मिलेगा। तू क्रिकेट मैच देख करके जो एंजॉय कर रहा है वो हमारे साथ में एंजॉय कर ले। क्रिकेट क्या देखता है, मैं तेरे को ब्रह्मांड दिखाता हूं, हमारी सामूहिकता में ध्यान कर। तो उसको आप बोलते हो, वो बोलता है मैं आता हूं, परसों से मैं आता हूं। परसों जिस दिन नहीं आया, फिर हमारा पीआर क्या करेगा? 4 साधकों को बोलेगा चलो चलते हैं, उसके घर पे जाकर ही ध्यान करके आते हैं। वो तो सुधरने वाला नहीं है, तो उसके घर पे जाके ध्यान करेंगे तो नया सेंटर ही सही खुल जाएगा। तो उसके घर पे जाके 4 लोग जाके ध्यान करके आते हैं, तो वो तो ध्यान कर लेगा, कोई बात नहीं, अभी आया किया है तो आ गए तो कर लेते हैं। लेकिन ये रोज रोज होने लग जाए तो क्या होगा? उसके मम्मी पापा बोलेंगे भाई तू सेंटर पे जाके ध्यान करना, हमको शर्मिंदा क्यों करता है? एकदम से आए हुए अतिथि का हम स्वागत कैसे करें? गाठिया जलेबी भी नहीं होती घर पे, हमारा राशन पानी खत्म कर देते। तो ऐसे सेंटर पे नहीं आया तो उसके घर पे जाकर ही ध्यान कर लेने का, लेकिन उसको ध्यान से जोड़ कर रखने का। वो बोले कि ऐसा क्यों करते हो, ऐसा एकदम से आ जाते हो करके, तो उसको बोलने का कि हम कलयुग में जी रहे हैं, शरीर भाव बहुत स्ट्रांग है, तू
जब तक तेरा शरीर भाव खत्म नहीं होता तब तक ध्यान से जुड़ा रहे, बाकी फिर तू आजाद पंछी ही है, वैसा ही पैदा हुआ है। स्वामी जी कहते हैं द्विज है, पहला तो तेरे शरीर का जन्म, दूसरा तेरे आत्मा का। तो आत्मा को पूरा पक्षी बनने तो दे, उसको उड़ने तो दे, उसको उड़ान तो लेने दे। बिल्कुल यही पीआर करता है, वो उसको फोन से, एसएमएस से, दोस्ती के नाम पर बुला लेता है कि तू आजा, ध्यान कर ले, यहाँ पर चल, तेरे से ध्यान नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, गुरु कार्य करने के लिए आजा, प्रचार करने के लिए आजा, या हमारे यहाँ पर एक सत्संग, थोड़ा भजन का कार्यक्रम रखा है, उसमें ही तू आजा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जिससे ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि होता है ना, हर किसी का शरीर भाव कम ज्यादा हो सकता है। जैसे जिम के अंदर में हर कोई मोटा सांड बन करके नहीं आता है, किसी किसी को पहले ही पता चल जाता है कि मोटे सांड बनने से पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो लोग बराबर से ज्वाइंट ही रहते हैं। वैसे ही हर किसी का शरीर भाव बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप सभी का आत्मा भाव ज्यादा है, इसके लिए आप ध्यान को जुड़े हुए हो, आज भी जुड़े हुए। आप सब लोग खुद के लिए तालियां बजा लो। आने वाले टाइम में आत्म भाव को हमको घरों घरों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये कलयुग है, अंधेरा है, अंधेरे के अंदर छोटे छोटे दिए लेकर के हमको जलना पड़ेगा, तभी जाकर के दूसरों को समझ आएगा कि इस प्रकार से पहुंचना है। स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात 1 अक्टूबर 2017 को बताई थी दांडी आश्रम के अंदर में, ट्रस्टियों की मीटिंग के अंदर में। उन्होंने बताया था ध्यान करना बहुत ही सरल है, इसके लिए ध्यान करना मुश्किल है। ध्यान करना इतना सरल है, इसके लिए वो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि आप मुश्किल सब्जेक्ट को पहले पढ़ाई कर लेते हो, आसान सब्जेक्ट को छोड़ देते हो कि इसमें तो मैं पास होने ही वाला हूं। वैसे हम हमारी सारी प्रायोरिटीज किस चीज पे लाते हैं कि हमको अभी समाज के अंदर में नौकरी पानी है, ये करना है, वो करना है। उसमें आपका आधा घंटा कौन सा बहुत बड़ा जीवन में चेंज ला देता है कि आप नौकरी के लिए नहीं जा सकते, जा सकते हो, आपका धंधा कर सकते हो, आप आपकी बेटी की शादी कर सकते हो। उसके लिए कोई जरूरत थोड़ी होती कि आधा घंटा नहीं किया तो अरे बेटी की शादी मिस हो जाएगी, आप आधे घंटे में शादी करते हो, नहीं। अब उसके अंदर तो इतनी बड़े बड़े विधि विधियां कर लेते हो कि उसको जीवन भर याद रहे, नहीं तो जल्दी भूल जाएगा। सोचो। तो कहने का अर्थ यह होता है कि इतना आसान ध्यान है तो वो क्यों बोले स्वामी जी, इसके आगे की लाइन भी जरा समझते हैं। स्वामी जी ने कहा यह ध्यान इतना आसान है, इसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस दिन कोई साधक ठान ले कि वो हर रोज सहस्त्र पर जाकर के आएगा, ये जर्नी वो रोज रोज पूर्ण करेगा ना, रोज रोज आएगा जाएगा, तो उसे ये रास्ता कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा। जब तक वो रोज रोज नहीं करेगा उसे वो रास्ता याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएगा हर बार। जैसे आप याद करो, अगर आपकी बचपन में आपकी स्कूल कहीं दूसरे गांव में रही होगी, तो आप इतने साल के बाद में स्कूल में जाते हो तो आपको एकदम से सब रास्ते याद रहते नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज बदली हुई लगती है, पता चल जाता है कि ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप इमेजिन करो एक अंधेरे कमरे में आप बंद हैं, एकदम अंधेरे, जहां पे कुछ दिखने को कुछ नहीं, सिर्फ सुनाई देता है, महसूस होता है। जैसे ध्यान में अपने को ब्रह्मनाद सुनाई देता है, अपने को खुशबू महसूस होती है, वाइब्रेशन महसूस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो, उस अंधेरे कमरे के अंदर में आप एक दरवाजा खोलते हो, आप बाहर निकलना चाहते हो अपने कमरे से, आप ध्यान करना चाहते हो अपने शरीर से छोड़ करके, आत्मा बन करके, शरीर से बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस। स्वामी जी वही कह रहे थे कि जो यहाँ पे आ जाएगा उससे आराम से बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आप अंधेरे कमरे में से एक कमरा खोलते हो, कमरा का खोलते हो दरवाजा, तो कुछ बर्तन बचते हैं, आपको समझ में आता है अरे ये तो किचन है, वापस दरवाजा बंद कर देते हो, आपको समझ में आता है वो किचन है। दूसरा बार दरवाजा खोलते हो, एक बेडरूम में आ जाते हो, पता चल जाता है क्योंकि टिक 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 करके क्लॉक बज रही होती है, तो आपको समझ में आ जाता है। लिविंग रूम में जाते हो, वहां पे टीवी होता है, ये सब होता है, आपको टच होता है, समझ में आता है कि ये तो ड्राइंग रूम है।
आप दूसरा दरवाजा खोलते हो, इतना अंधेरा है, आप पहुंच जाते हो टॉयलेट के अंदर में, टिप टिप कुछ पड़ रहा है, आपको समझ ये तो टॉयलेट है। तो आप सारे दरवाजे खोलने के बाद में एक आखिरी दरवाजे पे पहुंचते हो, वो दरवाजे पे ना कोई कुछ होती है, बाहर की आवाज, अच्छी खुली हवा आ रही होती, ठंडी हवा आ रही होती, आप समझ जाते हो कि आप घर के बाहर आ गए। अब आपको दरवाजा याद रह गया, एक बार दरवाजा याद रह गया, अंधेरे के अंदर में आप बार 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 उस दरवाजे को पहुंचोगे। रोज जब भी नींद से उठोगे अंधेरा पाओगे, उस अंधेरे के अंदर में अगर आपने वो दरवाजा तक पहुंचने की यात्रा हर रोज कर ली, अब आपको हर बार सारे दरवाजे खोलने नहीं पड़ेंगे, तुरंत से उस दरवाजे तक पहुंच जाओगे, तुरंत से वो दरवाजा आपको पता चल जाएगा। अभी आपको कोई बताएगा नहीं कि दरवाजा खोल ताकि बाहर निकलना है, आप तुरंत अपने आप ही निकल जाओगे। वैसे ही सहस्त्रार की यात्रा स्वामी जी ने हमको कभी ना कभी करवाई ही है। आपको नहीं याद तो आप ध्यान करो, स्वामी जी का लेक्चर सुनो, स्वामी जी का प्रवचन सुनो, आप स्वामी जी का किसी की अनुभूति ही सुन लो, आपको एकदम से ठंडे ठंडे वाइब्रेशन अनुभूति होने लगेगी। तो जैसे जैसे आपको ये यहां से यहां तक पहुंचने की आदत लग जाएगी ना, उसके बाद में आप अपने आप ही खुद ही अनुभूति को प्राप्त करना सीख जाओगे। उसके बाद में आपको नाम स्मरण की, उसके बाद में आरती की, आप उसके बाद में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर ध्यान करना, एक बार जिसको आ गया पहुंचने का रास्ता उस अंधेरे कमरे में से समझ में आ गया, फिर आपको सारे साधनों की आवश्यकता नहीं होगी, फिर आप आत्मनिर्भर हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जो स्वामी जी आपको करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? आज तक स्वामी जी ने एक लाइन हमेशा कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं। जीवन में जो स्वामी जी हमेशा कहते हैं ना, और बाद में इसके लिए कहते रहते हैं क्योंकि वो चीज हमारे में अभी तक सुधार लाया नहीं है, वो आना बाकी है, इसके लिए कहते हैं। मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अरुणाचल प्रदेश में था तो वहां के आदिवासियों के साथ में पतली पतली दीवारों पे दौड़ता था, लंबे लंबे पेड़ों पे चढ़ जाता था, इधर से उधर कूद मार लेता था, कोई डर नहीं था, और हमेशा उनके साथ में रहता था तो उनके जैसा हो गया था। तो आम आदमी के ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो आम बच्चा है करके, वो जंगली जैसा बच्चा लगेगा अपने को। तो मेरे को बचपन में पापा कहते थे मानसात रहा रे, मानसात रहा। इसका मतलब इंसान जैसा बिहेव कर, इंसान जैसा बिहेव कर। जब हम समाज में आ गए थे ना, तो सब लोगों को मैं अजीब सा लगता था, ये कैसा बच्चा है। तो जब तक मुझे कह रहे थे, इसका अर्थ ही था कि तब तक मैं थोड़ा पगलाया हुआ ही बिहेव करता था। फिर मैंने देखा कि 6 महीने साल भर तक स्वामी जी ने मेरे को ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो मैंने स्वामी जी को पूछा कि आप आजकल ये बोलते नहीं। मैंने बोला बोलना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि तेरे में वो आ गया है कि तो भी इंसान जैसा बिहेव करता है, इसके लिए नहीं बोलता। मैं कोई पागल थोड़ी तेरे को बोलता रहूंगा, तेरे में अगर तू इंसान जैसा बिहेव कर रहा है तो मैं बोलता रहूंगा। तो वैसे हमको स्वामी जी एक चीज हमेशा से कहते आ रहे हैं, गुरु एक हाईवे है, हाईवे को रास्ता बनाओ, उसको मार्ग की तरह उपयोग करो और अपने अपने घर पहुंच जाओ। अगर तुमने हाईवे को पकड़ा तो पीछे आने वाले जो लोग हैं वो भी अटक जाएंगे हाईवे में। मतलब हाईवे के अंदर आप रुक गए, कितना सुंदर नजारा है, कितना स्मूथ हाईवे है, कितना अच्छा आसपास का माहौल है, मैं तो यहीं पे रहना चाहूंगा। ऐसे करके आप अटक गए तो पीछे वाले भी ट्रैफिक हो जाएगा। अब इसको समझते हैं ट्रैफिक हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है? आपने देखा होगा विविध गुरुओं के साथ में यही हुआ है। गौतम बुद्ध के साथ में क्या हुआ? गौतम बुद्ध ध्यान लेकर के आए थे, जो लोग गौतम बुद्ध को मानते थे, अरे कितने अच्छे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि करते करते बुद्ध को ही इतना पकड़ लिया कि पीछे आने वाले लोगों ने बुद्ध का रास्ता अपनाने की जगह बुद्ध को ही पकड़ लिया। वो जिस मार्ग पे पहुंचे उस मार्ग पर चलो, यह उनका मैसेज है। और वही मैसेज बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं, आज नहीं करते ऐसा नहीं है। जो लोग फॉलो करते हैं वो पहुंच भी जाते हैं। तो ऐसे बुद्धिस्ट साधु भी हैं, ऐसे जैन साधु भी हैं जिन्होंने महावीर को नहीं पकड़ा, महावीर के ध्यान को भी पकड़ लिया, तो वो लोग भी पार हो गए। लेकिन वो पूरे समाज तक लेकर के नहीं आ पाए।
इस चीज को। लेकिन स्वामी जी आज लाया है, उन्होंने समाज तक लाया है। आजकल जो साधक ABC भी नहीं आता था जिसको अध्यात्म के बारे में, वो आजकल क्या करता है, इसके तो चक्र खराब है, इसमें तो पॉजिटिविटी निकल रही है, उसमें नेगेटिविटी निकल रही है, बोलने लग गए ना। जिसको कुछ समझ में नहीं आता था, ABCD कुछ नहीं आती थी, वो 2 साल में तो इतने सयाने हो गए कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात करने लग गए। तो हम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात क्यों करते हैं? हम खुद के अंदर चित्त क्यों नहीं रखते? आपने कभी नेगेटिव इंसान को पॉजिटिव बातें करते हुए देखा है? कभी आपने ऐसे गब्बर सिंह को बात करते हुए देखा है कि हमारा इतना गुरूर है कि हम सारे मोहल्ले की सफाई कर सकते हैं? ऐसा बात करते हुए कभी सुना नहीं। मोहल्ले को कटा सकते हैं, सबकी मुंडियां उड़ा सकते हैं, ऐसी बात करेगा गब्बर सिंह। तो वो कभी पॉजिटिव बात नहीं करता। तो हम सब तो पॉजिटिव हैं, हम क्यों नेगेटिविटी के बारे में भी सोचे भी क्यों? तो हम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आती है, यहां से पॉजिटिविटी आती है, ये व्यक्ति की वजह से नेगेटिव अटेंशन आ रहा है, वो सब चीजें छोड़ दो। स्वामी जी के ऊपर भरोसा ज्यादा बढ़ाओ, शक्तियों पे भरोसा ज्यादा करो, क्योंकि इन द एंड जितना आपको शक्तियों पे भरोसा है ना, उतना ज्यादा कार्य आपका वो करके ही खुद ही दे देगी। शक्तियों का अगर हम समझना चाहे तो वो कैसी है बताऊं? जैसे शक्ति को आप पिता का रोल समझ लो। शक्ति एक पिता है। आप रास्ते पे जा रहे हो, रास्ते पे जाते जाते ऐसा कोई होता है, कोई छोटा कुत्ता आता है आपके सामने भौंकता है, तो आप उसको पत्थर मार करके फेंकते हो, उसको डराते हो, उसको करते हो। वो कुत्ता और 10 लोगों को लेके आता है, 10 कुत्तों को लेकर के आता है, फिर आपके आसपास बहुत सारे कुत्ते हो जाते हैं, फिर भी आप चिल्लाते हो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, और फिर रोने लगते हो, फिर भी चिल्ला रहे हो रोते रोते भी। पिता कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि पिता सोच रहा है ये खुद ही कर सकता है, तो मैं क्यों अपनी ताकत लगाऊं। लेकिन फिर आप पिता को ऐसे पैर पकड़ लेते हो, बचाओ मुझे। कब करते हो? जब 10-12 कुत्ते हो जाते हैं तब करते हो बचाओ मुझे। पहले से बचाओ मुझे बोल देते तो वो बोलता है निकल यहाँ से, तो कुत्ता निकल जाता है आराम से। इतने बड़े आदमी को देख करके 10 कुत्तों को लेके आता नहीं, छोटे से इसको देख करके आता। तो वैसे हम हमारे जीवन के अंदर में समर्पण कब करते हैं? जब समस्या बहुत बड़ी हो जाती है, उसके बाद में समर्पण भाव आता है। उससे पहले नहीं आता है। उससे पहले हमें लगता है हम लोग खुद निपट लेंगे। तो ये समर्पण भाव को आप समस्या के इसके अंदर में मत डालो कि इतनी समस्या पे स्वामी जी का आता है। वो बोलते हैं स्लैब होता है इनकम टैक्स का, वैसे इतने स्लैब पे स्वामी जी का आता है काम, इतने स्लैब तक तो हमारा ही है। ऐसे नहीं बांटने का अपने को, सारा का सारा उनका ही है। अगर आप जिस मार्ग पे चल रहे हो, तो हाईवे पे चल रहे हो, तो हाईवे पे प्रोटेक्शन भी हाईवे की पुलिस देगी ना, हाईवे की एम्बुलेंस देगी। तो आप खुद का जब उपयोग करते हो, खुद का ताकत लगाते हो, तब क्या होता है पता है? आपके अंदर से होने वाला चैतन्य बंद हो जाता है, फेथ बंद हो जाता है। फिर हम लोगों को लगता है कि स्वामी जी ने तो हमारा साथ ही छोड़ दिया, ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। होता है ना? तो पीआर तो अपना कार्य करेगा आपको जोड़ने का, लेकिन आपको बड़ा करने का कार्य कौन करेगा? बड़ा करने का कार्य तो आपको खुद ही करना है, लेकिन सहारा हर किसी को चाहिए होता है। बागीचे के अंदर में पेड़ तो बड़ा खुद ही होता है, लेकिन पेड़ को फर्टिलाइजर्स देना टाइम पर, उसको सहारा देना, वो मालिक का काम होता है। तो कल्चर जो एडमिन रहेगा वो क्या करेगा? आप सोचो, एक व्यक्ति का जीवन होता है ना, साधक का, वो बिल्कुल एक पेड़ की तरह होता है। छोटा सा पेड़, बीज होता है पहले, तो ये बीज के ऊपर फूल कब खिलता है, उसकी पोकले कब निकलती है? बारिश होती है तब निकलती है। तो बारिश निकलने पर वो फटता है, फट करके वो प्लांट बन जाता है, एक प्लांट बन जाता है। ये प्लांट बनने के बाद में उसको कितनी खुशी होती है, वो एकदम चमकता है, एकदम सबसे। बबूल का भी कोई झाड़ होगा ना, तो भी उसकी पोकले फूटेंगी तो बड़ा सुंदर दिखता है। तो कोई भी प्लांट हो, उसकी पोकले निकलते से ही बहुत ही सुंदर सुंदर उसके अंदर से चमकदार ग्रीन कलर की पत्तियां निकलती। बिल्कुल उसी प्रकार से हम हमारे जीवन के अंदर पहली अनुभूति जो होती है ना,
पहली जो अनुभूति होती है बड़ी सुंदर होती है, अपने को लगता है हमारे जीवन में सब कुछ हम पार कर गए, अब तो नैया पार हो गई हमारी, अब तो स्वामी जी का साथ मिल गया, अब कोई हमको नहीं कुछ कर सकता। बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे आसपास की भी नए नए अनुभूतियां होती है, जो टूटे बड़े कार्य होते हैं वो सारे काम पूरे हो जाते हैं, हमारे सारी की सारी लाइफ एकदम ट्रैक पे आ जाती है, अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं आपको, जीवन बड़ा सा सुंदर सा हो गया है। वो पौधा और बड़ा होता है, पानी के अंदर में बारिश होती है तो और बड़ा हो जाता है पौधा। अब ये बड़ा हुआ पौधा धीरे धीरे करके क्या करता है, इतनी बारिश को देखता है तो बोलता है भगवान तू तो बहुत ही ग्रेट है, तुसी ग्रेट हो। हम करते हैं ना, स्वामी जी आपने मेरे लिए इतना किया, मैं भी आपके लिए जीवन दूंगी, मैं भी आपके लिए जीवन दूंगा, मैं भी गुरु कार्य से जुड़ूंगा। आप गुरु कार्य करते हो, बहुत दिल लगा के गुरु कार्य करते हो, हर प्रकार का गुरु कार्य करते हो। और ठंडियां होती, ठंडी के अंदर में किसी को पसीना आता है, नहीं आता है। वैसे ही आपको समझ में भी नहीं आता है कि इतना सारा आपसे गुरु कार्य हो रहा है। आप गुरु कार्य करते हो, रात को 2 बज जाते, 2 बजे गाठिया खा करके भी गुरु कार्य करते रहते हो। मजा आता है सबके साथ में गुरु कार्य करने के अंदर में। अब ये गुरु कार्य करते 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 क्या होता है, ठंडी का सीजन धीरे धीरे जाता है, फिर एक सीजन जरूर आता है साधक के जीवन में, जैसे एक प्लांट के जीवन में आता है। वो इतना तो बड़ा हो गया गुरु कार्य करते करते प्लांट, साधक आध्यात्मिक रूप से इतना तो बहुत बढ़ गया। लेकिन जैसे गर्मियां आती है वैसे एक साधक के जीवन में भी एक सीजन आता है जब उसको आध्यात्म की एक बूंद तक नहीं मिलती। गर्मियां आ रही है, गर्मी की हवाएं चल रही है जोर जोर से, उसको कोई गुरु कार्य भी नहीं मिलता है, वो सूख रहा होता है। ये जो सूखने वाला पल होता है ना, उसके अंदर में उसे लगता है स्वामी जी ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, स्वामी जी मुझे भूल गए, अभी स्वामी जी मेरे को याद भी नहीं करते। आप प्रार्थना लिखाते हो अनुभूति के लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप हार चुके हो अंदर से। आपको ये जो सूखा हुआ सीजन है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं सहारा खोजते हो, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। फिर क्या होता है, वो प्लांट मरने लगता है, उसको पानी की बूंद के लिए तरस जाता है, एक एक के लिए। ऐसे में जो अपना कल्चर एडमिन होगा, अगर उसे सहारा दे दे तो वो बच सकता है, सिर्फ बचेगा नहीं, चमत्कार घड़ के दिखाएगा। लेकिन उसे अगर सहारा नहीं मिला तो वो खो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हम प्रचार करने के बाद में बहुत सारे साधक खो जाते हैं ना, अच्छे अच्छे साधक खो जाते हैं बाद में, बिल्कुल वैसे ही ये मिट्टी के अंदर मिल जाता है अगर उसे सहारा नहीं दिया तो ये जो पेड़ है उसको कल्चर एडमिन क्या करेगा, उसको ऐसे पेड़ के साथ में रखेगा जिसके जीवन में आज वर्षा हो रही है, आज नए नए पोपले फूट रहे हैं, तो उसको लगेगा मेरे पे भी बूंदे गिर रही है। वो उसकी थोड़ी अनुभूति सुनेगा, उसको भी अनुभूति होने लगेगी, उसके भी बाल खड़े हो जाएंगे, उसको भी अंदर अंदर से ठंडा ठंडा, उसको भी प्रसन्न फील होने लगेगा। ये जो प्रसन्नता है वो उसको महसूस कराएगी कि अरे मेरे अंदर में 1-2 बूंद तो गिर रही है कहीं ना कहीं, अभी तक ध्यान छूटा नहीं है मुझसे, होगा मुझसे ध्यान होगा, उसे भरोसा आता है। आप उसको गुरु कार्य से जोड़ देते हो, आप उसको चिंतन से जोड़ देते हो, आप उसको मनन से जोड़ देते हो। वो गुरु कार्य के साथ में जुड़ करके, वो थोड़े थे साधकों के साथ में जुड़ करके एक गर्मियां काट लेता है। अब जब गर्मियां कट चुकी है, गर्मियां निकल चुकी है, तो अब होगा क्या, बारिश आएगी। अब इस बार बारिश आएगी तो उस साधक को पता रहेगा कि एक एक बूंद की कीमत क्या होती है। वो क्या करेगा, एक एक बूंद को ऐसे लेगा जैसे कि जीवन के लिए और कुछ नहीं है उसके पास। वो सारी बूंदों को खींचेगा, एक एक बूंद को छूटने नहीं देगा, एक एक दिन का ध्यान करेगा, रोज ध्यान करेगा, गुरु कार्य भी छोड़ देगा। वो ध्यान के अंदर इतना घुस जाएगा कि उससे सुध बुध भी नहीं रहेगी अपनी। अब वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा। अब वो पेड़ जो मर रहा था उसके अंदर जान आ जाएगी, वो एकदम सारी पत्तियां हरी हो जाएंगी, एकदम बड़ा हो जाएगा। उसके जो रूट्स हैं वो भी तेजी से बढ़ जाएंगे। वो पेड़ अब गुरु कार्य भी करेगा तो खुद के आनंद के लिए करेगा, इसके लिए नहीं करेगा कि उसको कुछ करना है, क्योंकि उससे कर्ता का भाव छूट जाएगा। उससे आनंद आ रहा है इसके लिए वो गुरु कार्य करेगा। वो गुरु शक्ति धाम भी जाएगा तो इसके लिए नहीं जाएगा क्योंकि उसको अनुभूति नहीं आ रही। उसको तो अनुभूति घर बैठे आ रही है, उसको तो अनुभूति सेंटर में बैठे आ रही है, उसको मूर्ति दर्शन की आवश्यकता नहीं है, बस आनंद के लिए जा रहा है, एंजॉय करने के लिए जा रहा है। वो जो पेड़ हो जाएगा ना, बातें बड़ा हो जाएगा। अब दूसरी गर्मी में उसको कोई फिक्र नहीं है, उसके तो जड़ें मजबूत हो गई हैं, वो खुद ही एनर्जी खींचने के लायक हो चुका है, काबिल हो चुका है।
जैसे मैंने कहा कि वो खुद ही यहाँ तक पहुंचने की अनुभूति उसको हो गई, रास्ता पता चल गया, अब उसको पता है अब उसके जीवन में कोई एटी केटी नहीं है। अब उसके जीवन के अंदर में ऐसा नहीं रह गया कि अरे इस सब्जेक्ट में फेल, मैं ईगो के अंदर में फेल हो गया या फिर मैं लालच के अंदर में फेल हो गया। सारे सब्जेक्ट को उसको समझ में आ गया कि पास कैसे होना है, सारे सब्जेक्ट सारे चक्र उसको समझ में आ गए कि किस प्रकार से यहाँ पहुंचा जाता है। उसकी यात्रा उसे समझ में आ गई, क्योंकि वो जो तृष्णा थी, जो जागी थी एक एक बूंद के लिए, वो उसके अंदर पैदा हुई थी। सोक्रेटिस ने बहुत अच्छे अपने, उसकी एक कहानी है, उसको उसका सोक्रेटिस करके एक ग्रीस में होकर के गया, एक बहुत अच्छा महान गुरु होकर के गया है। उसको उसके एक शिष्य ने पूछा कि मुझे सक्सेसफुल होना है मेरे जीवन में, तो सक्सेसफुल कैसे हूं मैं? तो उसने बोला कि हमारी ये जो नदी जा रही ना, हम उस नदी में जाएंगे और वहां पे उस नदी से पूछेंगे। थेम्स की नदी थी, अच्छी नदी थी। तो नदी के अंदर चलते 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 सोक्रेटिस भी गया, उसके पीछे वो शिष्य भी गया। उसने बोला मैं तुझे अपने शब्दों से नहीं बताऊंगा, तू खुद ही जान जाएगा कि सक्सेस पाने का मंत्र क्या है। वो नदी के अंदर चलते गए, गले तक पानी आ गया, वो वेट कर रहा है कि कब मुझे पता चलेगा, नदी कब मुझे बताएगी। वो जैसे ही ऊपर देखता है, पीछे से उसका गुरु सोक्रेटिस ऐसे गर्दन पकड़ता है, टाइटली नीचे डुबो देता है। वो सांसें लेने के लिए तड़प रहा है, उसको उसका मुंह नीला हुआ जा रहा है, मर रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। अब जैसे ही उसको पता चलता है उसके गुरु को कि अब ये मरने वाला है, उससे पहले छोड़ देता है। वो जैसे ही ऊपर उठता है तो क्या करता है, गहरी सांस लेता है। इतनी गहरी सांस उसने जिंदगी में कभी लेने के लिए वो तड़पा नहीं होगा। वो एक एक सांस के लिए, एक एक बूंद के लिए तड़पा हवा की। तो उसे समझ में आ गया कि जब तक उसकी बहुत ही कठिन वाली अपने को तृष्णा जागृत नहीं होती है, अपने को उसकी थर्स्ट जागृत नहीं होती, उसकी प्यास नहीं जागृत होती, तब तक अपने को कुछ मिलेगा नहीं। शायद इसीलिए साधक के जीवन में वो गर्मी का सीजन आता है। वो गर्मी का सीजन आपकी परीक्षा लेता है कि आपके अंदर में वो तृष्णा जगाता है, ताकि आपके अंदर के जो अहंकार है, आपके अंदर के जो एटी केटी लगी हुई है ना, सारी एटी केटी को तोड़ने का वही कारण है। जैसे कुंडली के अंदर में योग है ही कि हर किसी को शनि की 7.5 लगने ही वाली है, आप उससे भाग नहीं सकते। शनि की 7.5 के अंदर में हम लोग भागने के लिए क्या करते हैं, महामृत्युंजय का मंत्र जाप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास चले जाते हैं। वो गुरु भी आपको बचा नहीं सकता है। 7.5 होती है आपके कल्याण के लिए है। शनि किसके लिए बनाया गया? शनि का देवता का सबसे अच्छी क्वालिटी है उसका डिसिप्लिन। जैसे कि हमको हमारा एंड प्रोडक्ट है पैसे को प्राप्त करना, तो शनि का कार्य क्या होता है? शनि बताता है कि पैसे को कैसे प्राप्त करना, अच्छे तरीके से प्राप्त करना, प्रिंसिपली प्राप्त करना, एथिकली प्राप्त करना। एथिकली मतलब कि क्या? नीति युक्त तरीके से प्राप्त करना। अपने कोई भी गोल से जीवन में नीति युक्त तरीके से आप करोगे तो शनि खुश रहता है। तो आपको जीवन के सारे जब भी शनि की 7.5 लगते हैं, सारे के सारे अपने को परेशान करने लग जाते हैं। जो लोगों को हमने सोचा था, भरोसा किया था, वो साथ छोड़ देते हैं। समय पर कुछ भी नहीं होता है और अपने को लगता है कि अभी तो हमारी जिंदगी गई। ऐसे समय में ही सबको ना वो इच्छा होती है सुसाइड कर लेने की। तो लेकिन वो समय जो होता है वो शास्त्रों के हिसाब से आपके अंदर में वो तृष्णा पैदा करने का होता है कि अभी तो जिंदगी को संभाल ले। कितना समाज का सोचेगा, कितना खुद का सोचेगा, खुद के शरीर का अहंकार का सोचेगा। अब खुद के लिए थोड़ा समय दे। इसके लिए क्या करता है? शनि की 7.5 में इंसान को गुरु ढूंढना ही पड़ता है, उसके बिना उसको शांति नहीं मिलती है। तो हमारे सृष्टि ने भी हमको कैसा बनाया है? जीवन में तो 7.5 आती है, वो तो ठीक है, लेकिन ध्यान में भी आती है, ये अभी पता नहीं चलता। अभी पता चल गया होगा। बहुत से लोगों के जीवन में आपने देखे होंगे कि ध्यान में 7.5 लग गई। तो ऐसे में हमारे पास में कल्चर वाला एडमिन होगा, आपको थोड़ी ठंडक देगा, आपको थोड़ा पकड़ करके रखेगा, तो उस गर्मी को आप झेल जाओगे। थोड़ा समय निकल जाएगा, आप अपने आप ही पेड़ बन जाओगे। अब ये जो पेड़ बन गया है ना बड़ा वाला, उसको किसी से जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको देखते से ही समझ में आएगा कि इस इंसान के जीवन में गर्मी चल रही है। उसका चेहरा देख करके समझ में आ जाएगा। वो उसे हौसला दिलाएगा कि अभी तो टेंशन मत कर, थोड़े समय की बात है, अभी पकड़ करके रख, जमीन को उखड़ने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी सी ठंडक वो उसको भी देगा, वो भी धीरे धीरे करके ग्रो कर जाएगा, वो भी पेड़ बन जाएगा।
पेड़ बनने के बाद में हर कोई क्या करता है, फल देता है। वैसे आप सभी पेड़ बनोगे आगे जाकर के, समर्पण के बड़े बड़े वृक्ष बनोगे। आपकी वजह से लोगों को अपने अंदर में कुछ महसूस होगा, उसे भी इच्छा होगी कि हम भी आपके जैसे बने। होता है ना, कुछ कुछ साधकों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, अपने को लगता है अपने को भी उसके जैसे होते तो कितने खुश होते हैं हम। उसकी खुशी का कारण उसका कोई राज नहीं होता है, वो खुश खुद की ही आनंद की दुनिया में रहता है। इसके लिए उसके लिए उसको कोई कारण नहीं होता है। इसके लिए तो उसे आत्मनिर्भर कहते हैं स्वामी जी, कि जो व्यक्ति बिना किसी कारण के खुश है वही साधक है, वही साधना रस है। तो आप लोगों को ऐसे नेटवर्क के अंदर में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होंगी, लेकिन उस चीज पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे उद्देश्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या और भी कोई प्रश्न हो तो हम अच्छे सत्संग कर सकते हैं। आप खुद का अनुभूति भी बांट सकते हो, मजा आएगा। जय हो स्वामी।